بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینا میری اور جم پادریوں کے قافلے کو سوتا چھوڑ کر واپس گرجے میں آ گئے تھے اور انہوں نے خزانے کی کھدائی کے لیے تہہ خانہ کی کھدائی کی اور پہلی ڈھیری ہٹائی تو وہاں 3 لاشیں تھیں۔ وہ ان 3 ملازموں کی تھی جن کو پادریوں نے خزانہ دفن کرنے کے بعد راز کو بھی دفن کرنے کے لیے قتل کر دیا تھا۔ ہٹ جاؤ، جم نے کہا، میں دوسرے گڑھے سے مٹی نکالتا ہوں۔ اینا میری الگ ہٹ گئی اور جم دوسری ڈھیری کی مٹی ہٹانے لگا۔ اس کی پیٹھ تہہ خانے کی سیڑھیوں کی طرف تھی۔ اچانک ایک آدمی سیڑھیوں سے دوڑتا ہوا اترا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ سیدھا جم پر گیا۔ یہ خزانہ میرا ہے، اس آدمی نے کہا، اور پیشتر اس کے کہ جم سیدھا ہوتا، تلوار برچھی کی طرح اس کی پیٹھ میں گہری اتر گئی تھی۔ حملہ آور تلوار کھینچ کر بولا، میں اسی لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ جم مٹی کی ڈھیری پر گر پڑا۔ حملہ آور نے اینا میری کی طرف دیکھا۔ اب اینا میری کی باری تھی۔ تلوار اب اس کے جسم میں اترنی تھی۔ اس نے خنجر فراق کے نیچے نیفے میں اڑس رکھا تھا، لیکن وہ خنجر چلانا نہیں جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں مشعل تھی جس کا شعلہ بہت بڑا تھا۔ اس نے برچھی کی طرح مشعل حملہ آور کے منہ پر ماری۔ برچھی کی انی ہوتی ہے، مشعل کا شعلہ تھا جس نے حملہ آور کے چہرے کی جلد کے ساتھ اس کی آنکھیں جلا ڈالی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور اس نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اینا میری نے اسے اور زیادہ بیکار کرنے کے لیے ایک بار پھر مشعل کا شعلہ اس کے چہرے پر مارا۔ اس کے ہاتھ جلے تو چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر جھلس گیا۔ اس کے پیچھے جم گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ حملہ آور پیچھے ہٹا تو جم سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ جم مر رہا تھا۔ اس کے قریب کدال پڑی تھی۔ اس نے کدال مضبوطی سے پکڑ کر لیٹے لیٹے حملہ آور کے سر پر ماری۔ اینا میری نے خنجر نکالا اور حملہ آور کے سینے میں اتار دیا۔ اینی، جم نے مری مری آواز میں کہا، بھاگ جاؤ، اپنے گھر میں جا کر چھپ جاؤ۔ نہیں جم، اینا میری نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ جم کے پاس جا بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے ساتھ ہی جم نے آخری ہچکی لی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ حملہ آور بھی مر چکا تھا۔ مشعل فرش پر پڑی جل رہی تھی۔ تہہ خانے کی دیواروں اور چھت پر سائے ناچ رہے تھے، جیسے یہ ان 5 آدمیوں کی بدروہیں ناچ رہی ہوں جو اس تہہ خانے میں قتل ہو گئے تھے۔ خزانہ دوسرے گڑھے میں تھا۔ 2 لاشیں اس گڑھے کی ڈھیری پر پڑی تھی اور دونوں سے خون رس رہا تھا۔ اینا میری خوف سے کانپ رہی تھی۔ مشعل کا شعلہ ناچتا ہوا اسے اور ڈرا رہا تھا۔ اسے اچانک خیال آ گیا کہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، گرجے میں ہی کوئی اور ہوگا۔ اس نے مشعل وہیں پڑی رہنے دی اور تہہ خانے سے اوپر آ گئی۔ تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اندھیرا سیاہ کالا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس گرجے سے واقف نہ ہوتی تو دیواروں سے، پنجروں سے اور دوسری ان چیزوں سے ٹکراتی جو وہاں پڑی ہوئی تھیں اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا۔ صرف خوف تھا جو اسے چلنے نہیں دے رہا تھا۔ باہر نکلنے سے وہ ڈر رہی تھی۔ اندلس کے دارالحکومت کی رات خاموشی سے گزر رہی تھی اور یہ خاموشی بڑی ہی ڈراؤنی تھی۔ شہر کے بیشتر گھر خالی ہو چکے تھے اور ایک دلکش نوجوان لڑکی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ وہ گرجے میں چھپنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے دل مضبوط کیا اور باہر نکل گئی۔ دیواروں کی اوٹ میں چلتی اپنے گھر پہنچی اور اندر سے دروازے کی زنجیر چڑھا دی۔ اس رات کے بطن سے سحر نے جنم لیا تو طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ یہ آخری پڑاؤ تھا اور یہ سفر زیادہ لمبا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے نائبین اور دیگر عہدیداروں کو زبانی ریہرسل کرا دی تھی کہ تلیطلا کے محاصرے کو کس طرح کامیاب کرنا ہے۔ 812 عیسوی کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 پیادوں اور سواروں کا لشکر لے کر اندلس کے جنوبی ساحل پر اترا۔ وہ طارق بن زیاد کی مدد کے لیے نہیں گیا تھا۔ یورپی مورخوں نے مسلمانوں کی ہر حامی کو اچھالنا ہی تھا۔ خود مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر اندلس کی فتح کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا تھا۔ طارق بن زیاد بجا طور پر فاتح اندلس کہلانے لگا تھا۔ اس کی فتوحات کی اطلاعیں امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک تک پہنچ رہی تھی اور امیر المؤمنین کی طرف سے طارق بن زیاد کے نام پیغام جانے لگے تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو یہ صورتحال اچھی نہ لگی۔ بربر مسلمانوں کو عرب کے مسلمان پسماندہ اور گوار سمجھتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی گوارا نہ کیا کہ اس کا آزاد کیا ہوا غلام فاتح اندلس کہلائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اس لیے وہ اپنے فرائض پہلی سی تندہی سے انجام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں اور مشیروں کے بل بوتے پر کاروبار سلطنت چلا رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور وہی اس کے دماغ میں یہ بات پختہ کرتے رہتے تھے کہ ایک غلام کا فاتح کہلانا آقا اور امیر کی توہین ہے۔ کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں جو موسیٰ بن نصیر کی ذہنیت کو واضح کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے طارق بن زیاد کو اندلس بھیجا تھا تو اسے صرف 7,000 فوج دی، جس میں سوار بہت ہی کم تھے، لیکن خود گیا تو 18,000 کا لشکر لے گیا، جس میں 10,000 سوار اور 8,000 پیادے تھے۔ اگر وہ طارق بن زیاد کے حق میں مخلص ہوتا تو وہ خود جانے کی بجائے یہ فوج طارق بن زیاد کو کمک کے طور پر بھیج دیتا۔
दूसरी शहादत ये मुलाहजा हो कि उसने अपने दो बेटों अब्दुल्ला और मरवान को सालार बनाकर अपने साथ रखा और अपने बड़े बेटे अब्दुल अजीज को अपना कायम मुकाम अमीर अफ्रीका बना गया। तीसरी शहादत यह है कि वो अहले कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को भी, जिनमें अली इब्ने अबी अल-हमी और हयात इब्ने तमामी खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, साथ ले गया। उनमें 2-3 ज़ईफ़ुल उमर सहाबा कराम भी थे जो लड़ाई में शामिल होने के काबिल ही नहीं थे। उनके अलावा वो चंद एक मरहूम सहाबा कराम के बेटों को भी साथ ले गया। इससे उसका मकसद सिर्फ ये था कि बर्बरों पर अरबों की बरतरी पैदा की जाए। मूसा बिन नसीर की नीयत का इजहार तो उसी से हो जाता है कि वो 18,000 का लश्कर लेकर उंदलस गया और उसने तारक बिन ज़ियाद को इत्तला तक न दी कि वह उंदलस पर अपनी ज़ेर कमान फौज कशी कर रहा है। उसने तारक बिन ज़ियाद को यह हुक्मनामा भेजा था कि वो जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ से आगे पेश कदमी रोक दे। फौजी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो यह हुक्म भी नुकसानदा था। सिर्फ तारक बिन ज़ियाद ही बेहतर तौर पर समझ सकता था कि उसके सामने सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक उसे क्या करना चाहिए। तारक बिन ज़ियाद ने अपने सालारों से मशवरा किया था तो किसी एक ने भी नहीं कहा था कि इस सूरत में पेशकदमी रोक दी जाए, जबकि दुश्मन के पांव उखड़ चुके हैं और उसकी फौजी ताकत बिखर कर तबाह हो चुकी है। मूसा बिन नसीर ने तारक बिन ज़ियाद को 7,000 फौज देकर भेज दिया था और उस फौज में सिर्फ बर्बर थे जो जंगजू तो ज़रूर थे लेकिन बाकायदा जंग लड़ने के तौर तरीक़ों से वाकिफ नहीं थे। उनके पास जासूसी का कोई इंतज़ाम नहीं था जो कि फ़ौज का सबसे ज़्यादा अहम शोबा होता है। बर्बर सिर्फ लड़ना जानते थे। उसके मुकाबले में मूसा बिन नसीर खुद गया तो अपने साथ जासूसी निज़ाम के तजर्बाकार आदमी साथ ले गया। इससे उसने ये फ़ायदा उठाया कि उसे कबल अज़ वक़्त पता चल जाता था कि आगे क्या है और दुश्मन की कैफियत क्या है। तारक बिन ज़ियाद जो मकामात फ़तह करता हुआ आगे बढ़ा था उनमें 2 मशहूर मकामात मैदोना सैदोना और करमोना थे। मूसा बिन नसीर को उसके जासूसों ने बताया कि उन दोनों शहरों में तारक बिन ज़ियाद शहरी इंतज़ामिया को चलाने के लिए ईसाई हुक्काम मुकर्रर कर गया था। यह भी तारक बिन ज़ियाद की एक मजबूरी थी कि उसके पास इंतज़ामी अमूर के लिए आदमी नहीं थे, इसलिए उसे ईसाई और यहूदी हाकम मुकर्रर करने पड़ते थे। मूसा बिन नसीर को इत्तला मिली कि उन दोनों जगहों पर ईसाइयों ने बगावत जैसी सूरत हाल पैदा कर रखी है जो बहुत जल्दी बगावत बन जाएगी। तो मूसा बिन नसीर ने अचानक दोनों जगहों पर यके बाद दीगरे चढ़ाई कर दी। ये तो हो नहीं सकता था कि मुसलमानों की फौज जाती और उसके लिए शहर के दरवाजे बंद हो जाते। हुकूमत तो बहरहाल मुसलमानों की ही थी। इस तरह मूसा बिन नसीर ने दोनों शहरों पर अपना कब्जा मजबूत करके अरबी हाकिम मुकर्रर कर दिए। उसका कारनामा बस इतना ही था कि उन दोनों जगहों पर अगर बगावत की चिंगारी सुलग ही रही थी तो मूसा बिन नसीर ने उसे शोला या धमाका बनने से पहले ही सर्द कर दिया। लेकिन उसने दमिश्क को इस किस्म की इत्तला भेजी जैसे ये मकामात उसने खुद फतह किए हों। मूसा बिन नसीर की जंगी अहलियत और क़यादत का इम्तिहान उस वक़्त सामने आया जब उसने अशबिलिया का रुख किया। यह उंदलस का एक और मशहूर और बड़ा शहर था जिसे तारक बिन ज़ियाद ने इसलिए नज़रअंदाज कर दिया था कि वो सबसे पहले उंदलस की शाहरग या उंदलस का दिल अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था। यह शाहरग या ये दिल तलेतला था जो उंदलस के बादशाहों की गद्दी था। इसके अलावा तारक बिन ज़ियाद के पेश नज़र तलीतला की यह कैफियत भी थी कि बादशाहों की यह गद्दी खाली पड़ी थी और उंदलस में किसी की हुकूमत नहीं थी। तारक बिन ज़ियाद गरनाता और कुर्तबा को भी तलीतला जैसे अहम मकामात समझता था। प्रोफेसर डोजी ने लिखा है कि ये 3 मकामात हाथ आ जाने से बाकी मकामात की कोई हैसियत नहीं रह जाती थी। वहाँ की फौज ने अज खुद ही हथियार डाल देने थे। ये तारक बिन ज़ियाद की जंगी फहमो फरासत का करिश्मा था कि उसने आला तदाबीर को बरूए कार लाकर कम से कम फौजी ताकत से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लिया। मूसा बिन नसीर ने अपने जासूस पहले ही अशबिलिया भेज दिए थे। इसके अलावा उसने मैदोना सैदोना और करमुना के सरकर्दा लोगों से अशबिलिया के मुतल्लिक अहवालो कवायफ मालूम कर लिए थे। उसने उस शहर का मुहासरा कर लिया। उसे तवक्को थी कि इतनी ज़्यादा फौज से वो कलाबंद शहर को बहुत जल्दी फतह कर लेगा, लेकिन वहाँ की फौज ने ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जो ज़ाहिर करता था कि इस शहर को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकेगा जितनी मूसा बिन नसीर को तवक्को थी। अशबिलिया वालों ने दिफा का अंदाज ये इख्तियार किया कि अलल सुबह अचानक शहर के 2 दरवाजे खुलते और घोड़सवार बांध तोड़कर आने वाले सैलाब की तरह बाहर निकलते और मुसलमानों पर हल्ला बोल देते। वो जमकर नहीं लड़ते थे बल्कि तलवारें और बर्छियां चलाते आगे निकल जाते और वापस शहर में चले जाते थे। उनका कोई पता नहीं चलता था कि किस वक्त वो किस तरफ से बाहर निकलेंगे। मूसा बिन नसीर ने इस सूरत हाल का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुहासरा तूल पकड़ता गया और 1 महीना गुजर गया।
मूसा बिन नसीर तजर्बा कार सिपा सालार था। उसने कई किले सर किए थे। वो खुद भी सिपाहियों की तरह लड़ा था, लेकिन वो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच गया था, जहां उसका दिमाग तो काम करता था, लेकिन जिस्म में वो दमखम नहीं रहा था जो उसे किले की दीवारों पर भी चढ़ा दिया करता था। ईसाई फौज उसकी फौज का नुकसान कर रही थी और वो सोच रहा था कि क्या करे। आखिर उसके दोनों बेटों अब्दुल्ला और मरवान ने यह दलेराना इकदाम किया कि ईसाई घोड़सवार हमले के लिए किले से निकले, तो उन दोनों भाइयों ने अपने घोड़सवारों को दौड़ाकर किले की दीवार के साथ कर दिया और इस तरह ईसाई घोड़सवारों की वापसी का रास्ता बंद कर दिया। मुसलमान सवारों के लिए खतरा यह था कि दीवार के ऊपर से तीर अंदाज उन पर तीर बरसाते थे। इस नुकसान को बर्दाश्त किया गया और ईसाई घोड़सवारों को घेर कर खत्म कर दिया गया। यह तरीका बहुत ज्यादा खून और जानों की कुर्बानी मांगता था, लेकिन इसके सिवा और कोई चाराकार ना था। ऐसे 3-4 मार के लड़े गए तो शहर की फौज की नफरी बहुत ही कम हो गई। मूसा बिन नसीर ने सोच लिया कि अपना और दुश्मन का जिस कदर खून बहाया जा सकता है बहाया जाए और ये शहर फतह किया जाए। 1.5 महीने के बाद शहर फतह हो गया। उंदलस का एक और बड़ा शहर मुरीदा था। बाज़ मुअर्रिखों ने लिखा है कि मुरीदा को तलेतला से ज्यादा अहमियत हासिल थी। मूसा बिन नसीर ने उस शहर की तरफ कूच किया जहां मुनासिब मालूम होता है कि तलीतला का जिक्र पहले किया जाए। तारिक बिन ज़ियाद तलीतला की तरफ जा रहा था। वो इतना संजीदा और मुतफिक्र किसी भी लड़ाई से पहले नहीं हुआ था जितना वो अब था। उसे तलीतला का जो कुदरती और फिर इंसानों का बनाया हुआ दिफा बताया गया था वो उसे परेशान कर रहा था। उसने अपने सलारों से मूसा बिन नसीर पर इस हवगी का इजहार कई बार किया कि उसने उसे मजीद कमक नहीं भेजी। वो कमक की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। यह तारिक बिन ज़ियाद की खुशनसीबी थी कि हजारों बरबर उसके पास खुद ही पहुंच गए थे, वरना वो इतनी ज्यादा कामयाबियां इतने कम अरसे में हासिल न कर सकता। ये तो उसे मालूम ही नहीं था कि मूसा बिन नसीर 10,000 सवारों और 8,000 प्यादों के साथ उंदलस में दाखिल हो चुका है। तारिक बिन ज़ियाद को यह मालूम हो गया था कि तलीतला का दिफा बहुत मजबूत है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि तलीतला के अंदर की कैफियत क्या है। तलीतला के शाही महल में एक और ही ड्रामा चल रहा था। वहां कोई बादशाह नहीं था। बादशाह की औलाद थी। उस औलाद में सिर्फ एक बेटा था जो उसकी जायज औलाद था। उसका नाम रिचमांड था। उसकी उम्र 18-19 साल थी। दस्तूर के मुताबिक वही तहत का जानशीन था, लेकिन वह इस उम्र में ऐशो इशरत में पड़ गया था। माँ बाप उसे अमूर सुल्तनत की तरफ रागब करने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। वो शिकार का शौकीन था और उसका दूसरा शौक ये था कि जिस खूबसूरत और नौजवान लड़की को देखता उसे अपने साथ ले आता और कुछ दिनों बाद उसे एक और लड़की के लिए जगह खाली करने की खातिर चलता करता। राडरक उंदलस का शहनशाह था। उसने बाकायदा हरम बना रखा था जिसमें उंदलस की ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के मुल्कों की हसीन तरीन औरतें मौजूद थी। उनमें से 2-3 को वो इस तरह अपने साथ रखता था जैसे ये उसकी जायज बीवियां हों। उसकी जायज और कानूनी बीवी एक ही थी जो उसके उस अय्याश बेटे की माँ थी। उन 2-3 औरतों ने भी राडरक की औलाद पैदा की थी जो जायज नहीं थी, इसलिए वो शाही खानदान की औलाद नहीं कहला सकती थी। हरम की बाकी औरतों को थोड़े थोड़े अरसे बाद निकाल दिया जाता था और उनकी जगह नई लड़कियां आ जाती थीं, लेकिन ये 2-3 औरतें राडरक की मंजूर नजर बन गई थी। उधेड़ उम्री में भी वो महल में मौजूद थी। उनकी औलाद जवान हो चुकी थी। अब राडरक मर गया और उसकी जानशीनी का मसला सामने आया तो उन औरतों ने अपने अपने बेटे को उंदलस का बादशाह बनवाने की साजिशें शुरू कर दी, लेकिन राडरक के जायज बेटे रिचमांड की मौजूदगी में कोई और तख्त पर नहीं बैठ सकता था। तलीतला में फौज का जर्नैल योगो बेल्जी था। वो राडरक का दस्ते राज था। लोग और फौजी तो ये समझते थे कि वो इतना काबिल और तजर्बाकार है कि राडरक उसे तलीतला में ही रखता है और बाहर किसी लड़ाई में नहीं भेजता, लेकिन हकीकत ये थी कि ये जर्नैल राडरक की मलका का मंजूर नज़र था। वो राडरक पर ऐसी बुरी तरह छाई हुई थी कि वो उस पर हुक्म चलाती थी और अपनी बात मनवा लेती थी। वो राडरक को इस फरमा बरदारी का यही नाम देती थी कि जहां उसे कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की अच्छी लगती उसे वो राडरक को बतौर तोहफा पेश करती थी। राडरक का बेटा रिचमांड उन 2-3 लड़कियों को भी अपने सोने के कमरे में ले आया करता था जो उसके बाप की दाश्ताओं की बेटियां थीं और उनका बाप राडरक ही था। उनमें लीजा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 20-22 साल थी। उसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम बरगसन था, जिसकी उम्र 24-25 साल हो गई थी। वो भी राडरक का बेटा था और महल में उसे अच्छा खासा सरकारी रुतबा हासिल था। जर्नैल योगो बेल्जी राडरक की तरह ही अय्याश आदमी था। राडरक मारा गया तो महल में अमलन उसी जर्नैल की हुक्मरानी थी। उसे लीजा बहुत अच्छी लगती थी। राडरक के मरने के बाद उसने लीजा पर डोरे डालने शुरू कर दिए, लेकिन लीजा उसके हाथ नहीं आती थी। उसने लीजा से यह भी कहा था कि वह उसके साथ बाकायदा शादी करना चाहता है, फिर भी लीजा उससे दूर ही रही। उस जर्नैल ने लीजा को बड़ी सख्त धमकी दी। लीजा ने कहा कि वह मलका को बता देगी
उसे शायद मालूम था कि ये जर्नैल मलका से बहुत डरता है। मलका हर मलका थी, वो जिसके खिलाफ जो चाहे कर सकती थी। उस जर्नैल की हैसियत मलका की ही बदौलत थी। रॉड्रिक के मरने के कुछ अरसे बाद जब तारक बिन जियाद तलेतला की तरफ पेशकदमी कर रहा, एक रात लीजा जर्नैल योगो बेल्जी के पास पहुंच गई। तुम कैसे? जर्नैल योगो बेल्जी ने पूछा। आप ही के पास आई थी, लीजा ने जवाब दिया और पूछा, आप हैरान क्यों हो गए हैं? तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, लीजा ने जवाब दिया। लीजा को मालूम नहीं था कि महल के एक आदमी ने उसे देखा था और वो दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा था। वो रिचमांड था। मैं कमसन और नादान नहीं हूँ लीजा, जर्नैल योगो बेल्जी ने कहा। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम किसी और मकसद के लिए आई हो। वो मकसद बता दो। मैं कमसन और नादान हूँ, लीजा ने कहा। मुझे तजर्बा नहीं कि किसी को अपने हाथ में लेने के लिए किस तरह बात की जाती है, इसलिए मैं सीधी बात कर देती हूँ। आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं और मैं इनकार करती रही हूँ। मेरी जगह आप होते तो आप भी इनकार ही करते। अपनी और मेरी उम्र में फ़र्क देखिए। लेकिन अब मैं अपने आप को आपके हवाले करने आई हूँ, शादी करके बीवी बनाएं या बगैर शादी के। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, योगो बेल्जी ने कहा। जिस काम के लिए आई हो पहले वो बताओ। आप जानते हैं कि बरगसन मेरा भाई है, लीजा ने कहा, और आप ये भी जानते हैं कि हम दोनों बहन भाई शहंशाह रॉड्रिक की औलाद हैं। क्या आप नहीं समझते कि तहत का वारिस मेरा भाई भी है? लेकिन बरगसन बादशाह की कानूनी औलाद नहीं, योगो बेल्जी ने कहा। मजहब भी उसे रॉड्रिक का बेटा नहीं मानता। तुम्हारी ये ख्वाहिश बच्चों जैसी है, इसे दिल से उतार दो। जर्नैल योगो बेल्जी शराब पी रहा था। लीजा उसकी गोद में बैठ गई और बच्चों की तरह उसके साथ प्यार करने लगी। बूढ़े जिस्म में शराब और इतनी हसीन लड़की ने नई रूह फूंक दी। नशा दिमाग को चढ़ गया और बूढ़ा जर्नैल कमसन और नादान बन गया। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे भाई को किस तरह तख्त पर बिठा सकता हूँ? योगो बेल्जी ने पूछा। रिचमांड को कत्ल करा दे, लीजा ने कहा। तख्तो ताज का वारिस तो वही है, ऐलान हो या ना हो, बादशाह वही है। अगर वो ना रहे तो फिर आप बरगसन को बादशाह बनवा सकते हैं। क्या तुम अपने भाई के सर पर उंदलस का ताज रखने के लिए माँ के अकलौते बेटे को मरवाना चाहती हो? बूढ़े जर्नैल ने शराब के नशे में लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। सिर्फ इसलिए नहीं, लीजा ने कहा, मैं इसलिए भी शहजादा रिचमांड को मरवाना चाहती हूँ कि वह मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। आप देख रहे हैं कि आधा मुल्क हाथ से निकल गया है। हमलावर फौज तूफान की तरह आ रही है। इस शहजादे का बाप मारा गया है, मगर ये पहले की तरह ऐशो इशरत में मस्त है। कल रात उसने मुझे पकड़ लिया और बाग में ले गया था। मैं उससे अपने आप को कैसे बचा सकती थी? मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से उसे जहर दे दूं। मैं बहुत चीखी कि मैं तुम्हारे बाप की बेटी हूँ, क्या आप उसे जिंदा रहने का हक दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ, योगो बेल्जी ने कहा। मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता, ना उसे कत्ल करवा सकता हूँ। आप मलका से डरते हैं, लीजा ने कहा। नहीं, योगो बेल्जी ने कहा, कोई बाप अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। रिचमांड मेरा बेटा है, ये रॉड्रिक का बेटा नहीं। रॉड्रिक से मलका की कोई औलाद नहीं। लीजा के लिए ये इंकिशाफ कोई चौंका देने वाला इंकिशाफ नहीं था। बादशाह के महल में यही कुछ होता था। कौन किसकी औलाद है, इस सवाल का सही जवाब औलाद की माँ के सिवा कोई नहीं दे सकता था।